संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि सच्ची भक्ति का मार्ग किसे कहते हैं? फतेहाबाद के जयबीर सिंह जी ने बचपन से ही भगवान की खोज में हर तीर्थ और मंदिर की यात्रा की।
सालासर और मेहंदीपुर बालाजी की पैदल यात्रा हो या वैष्णो देवी और चामुंडा मंदिर, उन्होंने हर जगह भक्ति का प्रयास किया। शिव पुराण, गीता और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद भी उन्हें यह समझ नहीं आया कि भगवान कौन है और सच्ची भक्ति क्या है। लेकिन उनकी यह आध्यात्मिक यात्रा एक मोड़ पर आकर रुक गई, जब उन्होंने एक महान संत के ज्ञान से खुद को जोड़ा। संत की कृपा से न केवल उन्हें अपने जीवन की दिशा मिली, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह बदल गई। मजदूरी करने वाले जयवीर जी ने आज अपनी फैक्ट्री खड़ी कर ली है। जानिए कैसे उनके जीवन के हर संघर्ष का अंत हुआ और सच्चे संत की कृपा से उनका जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है जी। सर आप कहाँ से हैं? मेरा गांव अभी तो ढाणी डोल्ट बुन्ना फतेहाबाद में है जी। जन्म से मैं हिसार के पास रायपुर गांव से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 3/11/13 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मैं हनुमान जी का भगत था जी, और सालासर मेहंदीपुर पैदल भी कई बार गया हूँ, और लगभग 12 साल की उम्र से मैं हनुमान जी की भक्ति करता आ रहा था। और अन्य भी जैसे देवी देवता जिनको हम कृष्ण जी या श्री रामचंद्र जी कह सकते हो, या शंकर जी भगवान को भी हम भगवान मानते थे और इनकी पूजाएं भी करते थे। और दुर्गा माता के मंदिर की मैं वैष्णो देवी तक भी 3 बार गया हूँ, और वहाँ भी मैंने जो अन्य भी मंदिर हैं उनमें भी मैं गया हूँ, जैसे नैना देवी है, ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है, कांगड़ा है। मैं हर जगह गया हूँ परमात्मा की भक्ति के लिए, लेकिन कहीं भी मेरे को ये आत्मिक संतुष्टि नहीं मिली कि भक्ति मुझे किसकी करनी चाहिए। जैसे हनुमान जी के बारे में किसी से सुना करते तो सबसे बड़े हनुमान जी थे, और शंकर जी के बारे में सुना करते तो सबसे बड़े शंकर जी माना करते। कोई कहता कि कृष्ण जी सबसे बड़े हैं, कोई कहता कि गीता जी पढ़ा करो। तो मैंने पहले भी गीता जी पढ़ी, और जैसे शिव पुराण है ये भी मैंने एक बार पढ़ा हुआ है, और विष्णु पुराण भी मैंने पढ़ा था। और ऐसे ही मेरे पिताजी के एक साथी हुआ करते थे, हमारे रायपुर गांव के पास में न्याणा गांव है, वहाँ के एक आर्य समाजी थे। तो मैंने उस वक्त आर्य समाज की पुस्तक है जी सत्यार्थ प्रकाश, वो भी मैं पढ़ा करता, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें क्या लिखा है। कहीं ब्रह्म और ब्रह्मा की जानकारी भी मेरे को अलग अलग समझ में नहीं आती थी, कुछ मैं कम पढ़ा लिखा भी था। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण मैं इन उलझनों में उलझा रहता कि कैसे भक्ति करें, किस तरह करें। कभी पैदल जाके हनुमान जी की भक्ति किया करते थे, कभी वहाँ पेट पिलानियाँ भी चला करते थे। कई बार गया हूँ मैं सालासर पैदल भी। अन्य संतों से भी मैं प्रश्न किया करता था कि भगवान कौन है, वो एक भगवान जो दुनिया बताती है वो कौन है, जो जोड़ा छाप संत जिसको हम बोलते हैं उनसे भी पूछा करते। सर आपने बताया कि आप बचपन से ही भक्ति मार्ग में लगे हुए थे। भगवान प्राप्ति की तड़प में आप बहुत सारे मंदिरों में गए, कई तीर्थ भी आपने किए, लेकिन आपको जो संतुष्टि है वह संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मिलती है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मेरे को किसी भगत ने बताया कि तू गुरुजियों से प्रार्थना कर ले और दुकान कर ले। उसके बाद मैंने तुरंत गुरुजियों से प्रार्थना करी, और गुरुजियों ने दया करी, सिर पे हाथ रख के कहा बेटा दुकान करी। लेकिन परमात्मा ने धीरे धीरे ऐसी दया करी, आज एक फैक्ट्री का रूप दे दिया है, और उसमें 10-12 हमारे पास अन्य जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे तो कर ही रहे हैं, दास भी साथ में उस दुकान में ही आज तक काम करता है। उसके बीच में 2018 में उसी दुकान पर मेरे आँख में एक चोट लग गई, लोहे की चोट लगने से मेरी आँख खराब होगी, और मैं डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टरों ने भी मेरे को ये बताया कि आपकी आँख ठीक नहीं हो सकती, और आप कहीं भी घूम लो इस ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाएगा आपका, आपकी आंख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है अंदर से। और उसके बाद मेरे को भगत ने भी सलाह दी, दास के अंदर से भी एक प्रेरणा उठी कि क्यों न मैं अपने गुरुजियों के सामने ये बात रहूं। तो गुरुजियों के पास मैंने प्रार्थना भेजी, गुरुजियों का एक ही जवाब आया, बेटा परमात्मा दया करेंगे। तो मेरे लिए वो शब्द बहुत छोटा था, मैं उतना नहीं समझ पाया। कुछ समय के बाद लगभग 6 महीने के बाद फिर दोबारा प्रार्थना करी तो गुरुजियों ने वही शब्द फिर दोहराया, बेटा परमात्मा दया करेंगे। ऐसे करते करते मैं 5-6 डॉक्टरों के पास दिखाया। कोई डॉक्टर कहता कि 2 लाख रुपए लगेंगे, कोई कहता कि 1,60,000 रुपये लगेंगे। और हिसार में अग्निहोत्री हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ भी जाँच कराई। उसने मेरे को कहा जी आपको 1,40,000 रुपये लगेंगे और अभी तुरंत आप एडमिट हो जाओ, नहीं आपकी आँख अंदर से और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं घर आ गया। घर आके
मैंने बात करी तो छोटा लड़का मेरे से कहने लगा, पिताजी आप पैसे की तरफ देख रहे हो, अपनी आँख ठीक नहीं करा रहे। तो उन्होंने मेरे को एक शब्द कहा था कि ये आपकी आँख की गारंटी नहीं है। तो मैं कहने लगा, जब तक तुम गारंटी नहीं लोगे मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो मैंने किसी डॉक्टर से कराया भी नहीं, जांच बहुत जगह कराई, सभी एक ही बात कहते थे कि कोई गारंटी नहीं है कि आपकी आँख ठीक हो जाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से फिर चौथी बार मैंने प्रार्थना करी तो गुरु जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। और उसके 3 ही दिन बाद जिस डॉक्टर के पास मैं 6 बार जा चुका था और 6 बार वो डॉक्टर ये बात कह चुका था कि आपका ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा, आप अपने घर चले जाओ और ऐसे ही रहोगे। और 7वीं बार जब मैं गया तो उस डॉक्टर ने कहा कि रिस्क बहुत बड़ा है। तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकली कि आप रिस्क ले लो, और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। अगरवा मेडिकल मेरा ऑपरेशन हुआ और आज मैं बिल्कुल सही से देख पा रहा हूँ, बल्कि जो मेरी दूसरी आंख है उससे वो आंख और अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को। आज उम्र के हिसाब से भी यूँ मानो मेरी 53 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं बिना चश्मा के आराम से पढ़ भी लेता हूँ, दिखता हूँ, मेरे को देखने में कोई समस्या नहीं है। गुरुजियों ने दया करी, मेरा सिर्फ 450 रुपये लगे और 2 दिन में मैं घर आ गया। मैंने कोई परहेज, कोई लंबा चौड़ा सिस्टम कुछ भी नहीं करना पड़ा और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी, मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया करी। दूसरा, अपने समाज में सामाजिक लोगों के बीच में एक समस्या आती है बच्चों की शादी करना, वो भी परमात्मा ने हमारे को यही पता नहीं चला कि हमारे बच्चों की शादी कब होगी, ना हमारे के खर्चों से कोई समस्या सामने आई। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से ही हमने बच्चों की रमैणी की और आज वो बच्चे सभी खुशहाल हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं। और गुरुजियों ने दया करी, आज मेरा पूरा परिवार दीक्षित है और छोटा बच्चा बड़े लड़के का लड़का है जिसकी उम्र आज 7 साल है। गुरुजियों की दया से 2.5 साल से वो भी दीक्षित है, यानी कि कोई भी बिना दीक्षा के घर में नहीं है और हम बहुत खुशी से रह रहे हैं जी। बाइक का मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरी 3 पसलियाँ टूट गई थी। बाइक रोड पे गिर गया और मेरा सांस रुक गया था। लगभग समय के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो यानी कि 8 से 10 मिनट तक मेरे को सांस नहीं आया। तो उस टाइम पर भगवान की वो वाणी और वो मंत्र मेरे को याद आए। भगवान जैसे मेरे पास ही खड़े हो गए, बोलते हैं कि बेटा मंत्र जाप करो। तो संत रामपाल जी महाराज जी, और मंत्र जाप करने के लिए जब मैंने कोशिश की तो मंत्र जाप सांस से होता है, मेरा सांस नहीं उठ रहा था। फिर परमात्मा की वो संत रामपाल जी महाराज जी की गुरुजियों की वो वाणी याद आई कि बेटा अगर सांस से नहीं तो कम से कम मानसिक जाप करो। तो मानसिक जाप करता रहा और मेरे को सामने देख रहे थे, उनकी गाड़ी खड़ी थी, जिनके घर के पास उनकी खुद की गाड़ी थी, वो मेरे को गाड़ी में लेके और डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। तो रास्ते में एक लड़के के दिमाग में आया कि ये बोल नहीं रहा और इसको सांस भी नहीं आ रहा। तो उसने मेरी बाजू पकड़ के ज़ोर से हिलाया कि अंकल आप बोल क्यों नहीं रहे। तो उसने हिलाया तो मेरे को सांस आया। मैंने उससे इशारे में बताया कि मेरे को सांस नहीं आ रहा है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो वो भी घबरा गए कि इसको सांस नहीं आ रहा है तो ये मर जाएगा। लेकिन परमात्मा की वो बात मेरे को याद थी, संत रामपाल जी महाराज जी की गुरुजियों की बताई हुई कि आप सब बातों को भूल के और भगवान को याद करना। तो डॉक्टर ने जाके ऑपरेशन वो एक्सरे किया। एक्सरे करने के बाद उन्होंने बताया कि आपको अंदर से बहुत जख्म हो चुका है। वो बोले कि आपको 4 घंटे बाद अगर दर्द कम नहीं होता है तो आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा और कहीं भी कोई बड़ा पीजी हॉस्पिटल में चला जाना, यहाँ मत आना। और उन्होंने दवाई देके अपने हॉस्पिटल से हमें घर भेज दिया। 4 घंटे बाद मेरे को आराम महसूस हुआ तो फिर फ़ोन करके डॉक्टर को भी बताया कि मेरे को दर्द कम हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप 3 दिन दवाई लीजिए और 3 दिन के बाद हमारे पास आइए। तो मैं 3 दिन के बाद उनके पास गया तो उन्होंने 3 दिन की दवाई और दी। ये कहा कि पसली टूट चुकी है, ये आराम करने से आपकी ठीक होगी, इसका और कोई इलाज नहीं है और आप आराम करो। तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के अनुसार और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं 3 या 4 ही दिन घर रहा था और डेली दुकान पा के बैठा करता और मैं धीरे धीरे मेरे को ये भी नहीं पता चला कि मैं कब ठीक हो गया। सर, आपने बताया कि आप बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़े हुए थे। आप सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, आप तीर्थों पर जाया करते थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपने बताया कि आपकी जो इच्छा थी वह पूरी हुई, आपको भगवान की प्राप्ति हुई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वह संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं?
जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए टीवी पे जो भी भक्तात्माएं देख रही हैं, जो भी मानव समाज देख रहा है, वो टीवी के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के ऊपर आश्रम के नंबर दिए हुए होते हैं। उन नंबरों पे कॉल करके आप अपने नज़दीक नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। नहीं तो एंड्रॉयड फ़ोन सभी दुनिया के पास आज जेब में है, वो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब पे या फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज सर्च करके निकाल सकते हैं। वहाँ से भी पता नंबर लेके उन नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं और आश्रम से पूरी जानकारी प्राप्त करके नाम दीक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिल्कुल फ्री नाम दीक्षा मिलेगी और आप परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और आप भी जुड़ के जो हमें लाभ मिले वो आप भी ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता कह, पहले तो ये कह रहा है 12 से लेकर 15 में कि ये तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी के विषय में कहता कि 4 प्रकार की करते, और उसमें बताया दिया ज्ञानी ही मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझकर वो साधना करते हैं, लेकिन वो रह गए मेरे वाली अनुत्तम गति में। क्या कारण क्या था बता रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रवर्ते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ब्रह्म की, अन्यथा वो और पूजाओं पर लगे रहते हैं, नीचे के देवताओं की या अन्य क्रियाओं पर करते रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी भक्ति करता है, ज्ञानी मेरी भक्ति करता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ है, वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ होता है सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब ब्रह्मांडों के ऊपर हो, वो वासुदेव है। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के बेटे थे, पुत्र थे, और वासुदेव उसके पिता का नाम वेदों से ही रखा गया था, क्योंकि जैसे हम चांद रखते अपने बच्चे का नाम, किसी का सूरज रख लेते हैं, तो वो चांद और सूरज थोड़े ही ये, तो इसी प्रकार वो वासुदेव नाम था, वासुदेव का पुत्र था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो श्री विष्णु जी था, श्री विष्णु जी थे। और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोक पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर केवल एक विभाग का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये वासुदेव नहीं है। और इसका जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये 2 पुरुष बताए, सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव नहीं है, केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर। वो 3रे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव। और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका
पाप नाशक है, वही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है और केवल वही उपास्य है। उसको इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और ये अज्ञानी अनाड़ी हमारे गुरु धर्मगुरु कहते हैं ना, अपने विषय में कह रहा आ जा, है कोई बात है। फिर जान का की अर्थ कहता है जो आ जा बैठी को, तू सुखी शरण में था, वो खुद पहले ही था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा कि मैं आपकी शरण हूं और मेरी बुद्धि अब काम करना बंद करेगी, मेरी अकल काम नहीं करती, जो हमारे हित में हो आप हमें बताओ, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य। अर्जुन कह रहा मैं तो आपकी शरण पहले ही हूं। तो यह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये विचलित हो गए। उसका मूल संस्कृत मूल पाठ ऐसे है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा सच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जो साधना तू कर रहा है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहता पुरा। ओम तत्सत, ओम इस सरपुरुष का ब्रह्म का है और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् है अक्षर पुरुष का मंत्र है और सत भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं। ये परम अक्षर पुरुष का उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहाँ इसने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो तू सही संत तुझे मिलेगा तत्वदर्शी, वो 3 मंत्र की उपासना देगा। उसमें जो मेरे सतर की भक्ति है ओम नाम की, वो मुझे त्याग दे। अब हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप को ब्रह्म लोक में खत्म कर देते, इसकी कमाई को, इसकी भक्ति को, और अपना वहाँ पुण्य समाप्त करके 84 लाख योनियों में गिर जाते थे, अपना धन नाश करके हम निर्धन हो जाते थे। तो अब ये कहता है यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ओम नाम की पूजा मुझे छोड़ देना, ये विधान है। फिर कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर के जो धार्मिक क्रियाएं तूने की है, क्योंकि यज्ञ हवन जो हम धर्म करते हैं और ओम नाम का जाप, ये हम यहीं छोड़ेंगे, इसको देंगे और अपना संसारिक लाभ हमें यहाँ मिलता रहेगा। फिर जो तत् और सत मंत्र के जो कमाई है ये आगे लेकर चलेगी आपको। तो तत् है जो अक्षर पुरुष का, इसके 7 संग ब्रह्मांडों से हमने गुजरना है, वहाँ इसका टैक्स देना है, इसकी कमाई वहाँ दे देंगे। और तीसरा जो सारनाम है सत्य, जिसको गीता में श्लोक 17 के 23 में कहा है, वो सत्य ओम तत्सत, जो सत्य है वो है सारनाम, वो है परम अक्षर ब्रह्म का, उस सत्य पुरुष का। वो लेकर हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा बर्मा द्वार खोल के। अब जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसने कहा कि मेरे सतर के जितने धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तो वो मुझे छोड़ मेरे को दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम पाप कर्मों से बंधे रहते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इस कारण ले रखा था, ये नहीं देंगे तो नहीं जाने देगा, तो ऋण दे देंगे, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इसका अर्थ ये बनता है व्रज माने जाना होता है, इन सब नाड़ियों ने आना किया हुआ है। तो ये बैठा इन्होंने अज्ञान बना दिया, इस निर्मल ज्ञान गीता जी का अज्ञान बना के धर दिया अपने अनुवाद में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर दास ने गीता जी को अनुवाद किया, फिर सोचा कि वेदों को भी देखूं। वेद भी अनुवादित थे, जिसमें महर्षि दयानंद और उसके चेलों ने फिर ये किए, और था श्री राम शर्मा, इन कईयों के अनुवादकों के दास ने वेद पढ़े, क्योंकि मूल ज्ञान दास के पास था जो तत्व ज्ञान है। और इन्होंने इन सदग्रंथों के जहाँ अनुवाद खराब किए, वो दास के समझ में तुरंत आ गए। तो फिर वेदों को देखा, वो तिरेगी। फिर दास ने सोचा था कि ये महर्षि दयानंद जो है ये वेदों का विद्वान समझा जाता है, और सत्यार प्रकाश के बारे में हम भी सुना करते थे कि इन्होंने वेदों को ही सरल करके इसमें लिखा है, उसका ज्ञान है।
तो दास ने फिर सत्यार्थ प्रकाश इस चाव से पढ़ा था कि अगर इसमें समर्थन मिल जाए तो यहाँ के लोग इसको बहुत मानते हैं और ये भी और ज़्यादा सहयोगी होगा भगवान को भगवान मनाने में। अब सत्यार्थ प्रकाश जब देखा और वेदों से मेल करा, एक भी कितना भी सच्चाई आसपास नहीं पाई, तो इसलिए दास ने कहना शुरू किया ये सत्यार्थ प्रकाश में कोई भी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है। और देखो, कोई दास का उद्देश्य नहीं, सबको ये समझाना चाहता हूँ कि आप दिशा गलत जा रहे हो, आप इसको त्याग दो और वापस आ जाओ। बुद्धिमान थे वो तो आ ही गए, लेकिन जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी आचार्यों की, जो उनसे चंदा लेकर खा रहे थे, इसको बेच रहे थे, रोजी रोटी निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने भ्रमित करना शुरू कर दिया, झूठ बोलने शुरू कर दिए। चाहा था कि रामपाल बिल्कुल इतना बदनाम कर दें, इसका नाम से भी नफरत हो जाए लोगों का, लेकिन ये भगवान का मार्ग है, परमात्मा का चलाया हुआ है। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उनके साथ भी ऐसे जुल्म किए थे इन हमारे धर्म गुरुओं ने, लेकिन तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन इतनी कमी रहेगी कि उसमें शिक्षित नहीं थे हम शिक्षित ना थे, इसलिए भगवान यही ज्ञान सुनाया करते जो दास आपको आज सुना रहा है। लेकिन आज दास को उन सदग्रंथों का सहयोग मिला जिससे आपको खींचने में आसानी हुई। अन्यथा आपको जो दास बता रहा था कि 6 सुख होने के बाद एक ही सुख नहीं हुआ जिसको वो चाह रहा था, और जो भगवान उसे देना नहीं चाह रहा था उससे ही भाग गया। अब आप के बारे में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं सदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान संपूर्ण दिया है परमात्मा ने, आपको ऐसा ज्ञान कर दिया आप यहां से हिल नहीं सकते। अब क्या कहते हैं, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोर। समुद्र के अंदर काग बैठकर चले जाते हैं जहाज के ऊपर, सैकड़ों 200 किलोमीटर जाने के बाद जहाज के चालक पहले समय में ये निरीक्षण किया करते थे कि कहीं तुम्हारा दिशा सूचक डिस्टर्ब तो नहीं हो गया किसी चुंबकीय चट्टान के कारण। उसको उनका एक तरीका था, कौवे के अंदर एक ऐसी विद्या दी है भगवान ने कि वो शाम के समय बैठ जाता था जहाज पे, क्योंकि खाना खाने के लिए अतिथि बैठ जाते थे, टुकड़ा डाल देते थे, तो वो इस लालच में चला जाता, रात को हो जाती, तो सुबह जब होता तो चालक, समुद्री जहाज के चालक अपना दिशा सूचक की जांच ऐसे करते थे, उस कौवे को विवश कर देते थे पत्थर मार मार के उड़ने के, तो वो उड़कर उसी दिशा में चलता था जिस दिशा से वो आए थे। पूर्व से आए थे तो पूर्व को ही चलेगा वो सीधा स्ट्रेट, तो उससे वो अपनी दिशा ठीक कर लेते थे। फिर वो कौवा थोड़ी बहुत दूर जाता था, आधा किलोमीटर मुश्किल से, फिर कहीं बैठने का स्थान नहीं उसको दिखाई देता था, वापस आकर उस जहाज पर ही शरण लेता था, नहीं तो कहीं और बैठे तो डूब कर मर जावे। तो पुण्यात्माओं, ऐसा ज्ञान करा देगा ये दास आपको, सब प्रमाणित करके सदग्रंथों से। आप उस जहाज के काग की तरफ, कौवे की तरह, आपको पृथ्वी पर कोई ठिकाना दिखाई नहीं देगा सतलोक आश्रम बरवाला के सिवाय, तो आपका जीवन बचावे, आपका मोक्ष करावे। तो पुण्यात्माओं, ये आज जो सत्संग प्रारंभ हुआ है परमात्मा के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में, तो आज आपको केवल सतयुग में परमात्मा आए, ये चारों युगों में आते हैं। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है, चारों युग में संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक, बंदी छोड़
काल के लोक से कर्म बंधन से छुड़वाने वाले बंदी छोड़, कबीर परमेश्वर ये हमारे जनक हैं, हम सब आत्माओं के पिता हैं। और आप जी हम सभी यहाँ पर इस काल के लोक में कर्मों के बंधन से बंध गए। हम अपनी भूल के कारण, गलती के कारण यहाँ फंस गए। यहाँ हम बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कोई जीव सुखी नहीं, किसी को अगले पल का पता नहीं कल आपका क्या होगा, एक सेकंड के बाद आपके साथ क्या घटना घटेगी। इसके बावजूद भी हम चिंतित नहीं होते। इसका कारण क्या है? इसके विषय में परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है। वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं ही बताते हैं और कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अपन आत्मा विचार करने की बात है कि हम प्रतिदिन देखते हैं कहीं फ्लड आ जाता है, सैकड़ों की संख्या में मानव मर जाते हैं, कहीं सूखा गिर जाता है, हाहाकार मच जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कई बार तो लाखों की संख्या में जनहानि हो जाती है। और शेष बचे हुए कभी चिंता नहीं करते कि जहां आप बैठे हो क्या ये स्थान वैसा ही नहीं है जहां पर ये घटनाएं घट गई। तो आप जी को यानी हम सबको ये चिंता क्यों नहीं बनती? क्योंकि हमारे ऊपर इस काल भगवान के भांग का नशा है, और नशे में व्यक्ति कितनी भी भयंकर उसके सामने घटना होनी हो वो चिंतित होता ही नहीं। इस भांग के नशे को उतारने के लिए परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान, सूक्ष्म वेद, तत्व ज्ञान रूपी एंटीबायोटिक ये प्रवचन स्वयं आकर के जानकारी दी। और इनके सुनने से, कानों के माध्यम से ये अंदर डोज जाती है। ये डोज लेने से हम सतर्क होते हैं, हमारे यहाँ भांग का नशा उतर जाता है और तब हम चिंतित होते हैं। तब हम इतना चिंतित होते हैं, चिट्टी भी मर जाती है तो भी दुखी होते हैं। कोई कुत्ता अनजानपने में आपकी गाड़ी के नीचे भी आकर मर जाता है, उससे भी चिंतित होते हैं। काफी देर तक आत्मा परेशान रहती है। अब देखिए बेचारा चला गया, और एक दिन हमने भी ऐसे ही चला जाना है। ये बातें हमें फिर रह रह कर याद रहने लग जाती हैं। भगवान ज्यादा याद आता है, और इस प्रकार फिर हम यहाँ से सत्साधना करके और यहाँ के भौतिक सुखों की इच्छा समाप्त करके हम वहां चले जाएंगे जहां जाकर जीव सदा सुखी रहता है, जहां मृत्यु नहीं होती, वृद्धावस्था नहीं है, कोई रोग शरीर में नहीं होता। ऐसा स्थान है वो सत्यलोक। और उस सत्यलोक की नकल यहाँ काल भगवान ने, सरपुरुष ने भी कर रखी है, जिसमें स्वर्ग महास्वर्ग बना रखे। अब डुप्लीकेट वस्तु तो डुप्लीकेट ही होती है। इतना अंतर समझो जैसे एक बूरा कोट रखी हो, बूरा चीनी से बूरा बना रखी हो, एक थैली में बूरा रखी हो या कटोरे में, और दूसरे कटोरे में नमक रखा हो। अब दोनों देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके टेस्ट में बहुत अंतर है। तो सतलोक तो समझो बुरा है,
और यहाँ के जो काल ने बनाए हुए स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि जितने भी स्थान हैं, ये नमक है। और नमक की बोरी के अंदर, नमक के थैले में कोई चींटी चढ़ जाती है या कीड़ा होता है, वो उस नमक के टेस्ट से ही परिचित होता है, उसी के स्वाद से परिचित है। और उसको कोई ये कहता है कि ये बुरा है तो बुरा ही मान लेता है, क्योंकि जहां भी वो जाता है उसको वही टेस्ट मिलता है। और जो बूरा के कटोरे में, बूरा के थैले में, चीनी के थैले में जो होगा, उसको पता चलेगा फिर टेस्ट क्या है। क्योंकि डुप्लीकेट और ओरिजिनल जो लोक, सतलोक और ये स्वर्ग लोक हैं, ये मिलते जुलते हैं। यहां भी 4 मुक्तियां हैं, ये नासवान है। सतलोक की जो 4 मुक्ति वो सदा रहने वाली है, इनसे अधिक सुख है। तो इस प्रकार हमने अभी तक ज्ञान था नहीं, और उस यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सर्वम है, वही यथार्थ ज्ञान दाता है, वही जगत गुरु है, और वही सच्चा भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा पिता है, वही हमारा बंधु है, और वही हमारा माता और पिता है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। परमात्मा ही अपना सर्व साथी है, अपना सच्चा मित्र है, हमारा सच्चा माँ और बाप का रोल भी वही करता है। ठीक है, हमारे माता पिता भी हमारी बहुत ध्यान रखते हैं, विशेष ममता भी होती है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। छोटे से बच्चे होते हैं, माता मर जाती है, किसी का पिता मर जाता है, वो चाहकर भी हमें साथ नहीं दे पा सकते। इसलिए वो सच्चा साथी हमारा परमात्मा है, और वही हमें यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। आज का जो सत्संग, ये जो सत्संग चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? परमात्मा स्वयं 4 युगों में आते हैं। प्रत्येक युग में वो यथार्थ ज्ञान अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का स्वयं ही बताते हैं, और हमें जानकारी देते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप इस लोक के रहने वाले नहीं हो, ये स्थायी स्थान नहीं है आपका। जिन कोठी और बंगलों को, जिस देश या मोहल्ले को, गांव को आप अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ आपका पुनर्जन्म होगा, किसी पशु रूप में या पक्षी रूप में, मानव रूप में हो गए तो हो सकता है आपका दूसरे देशों में जन्म हो जाए, क्योंकि आपके पूर्व के संस्कार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रले मिले हैं, जिस कारण से आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। इसके विषय में परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने कहा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। जो पहले चले गए उन्होंने तो अपनी स्थिति बताई नहीं, उनके साथ क्या बना, आगे जाके उनके साथ क्या बीती, और जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे ऐसे ही बारी बारी। और गरीबदास जी महाराज कहते हैं, बिन साहेब की बंदगी, उस सच्चे भगवान की, साहेब मन परमात्मा की, बिन परमात्मा की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो हमने ये देखना होगा कि हम किस परमात्मा की भक्ति करें, किस भगवान की, स्वामी की, राम की, खुदा की, गॉड की भक्ति करें। इसके लिए हमने परमात्मा की परिभाषा को समझना होगा। जैसे
साहब किसे कहते हैं, राम किसे कहते हैं, प्रभु, स्वामी, मालिक किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एसडीएम भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जितने हैं सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन प्रत्येक साहब की शक्ति में, क्षमता में, सामर्थ्य में अंतर है। और ये हैं सभी साहब, स्वामी हैं, मालिक हैं। तहसीलदार एक तहसील का स्वामी है, राम है, साहब है। एसडीएम एक डिवीजन का, अपने क्षेत्र का अपना जो जॉब है उसका। और डिप्टी कमिश्नर एक जिले के अंदर साहब है, कंट्रोलर है। कमिश्नर 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है। और मंत्री एक स्टेट का, राज्य का एक विभाग का होता है, स्वामी, साहब, मालिक। और मुख्यमंत्री उन सभी मंत्रियों के ऊपर भी साहब होता है, वो केवल एक राज्य का, एक टुकड़े का होता है। और प्रधानमंत्री बहुत से मुख्यमंत्रियों के ऊपर साहब होते हैं। इसी प्रकार पूरी व्यवस्था भगवान की भी आपने समझनी चाहिए, ऐसे समझनी होगी। जैसे अन्य भी देव हैं, जैसे वरुण देव है जल का देवता, जैसे कोई सिंचाई मिनिस्टर है, सिंचाई मंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर, तो वो सिंचाई मंत्री एक मनुष्य होता है, उसको नहर महकमे का मंत्री भी कहते हैं, नहर मंत्री। तो ऐसे नहर मंत्री नहीं है, वो मनुष्य मंत्री है, जिसके अंतर्गत सभी सिंचाई स्रोत आते हैं, वो उनका कंट्रोलर होता है। इसी प्रकार जैसे विद्युत मंत्री होता है, बिजली मंत्री, तो वो बिजली नहीं होता, वो मनुष्य होता है। ऐसे ही हमारे देव हैं, जैसे कुबेर देवता है, कुबेर ये वित्त मंत्री है। और जंगल के देवता हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जितने ये पृथ्वी हैं, जैसे ऊपर के लोकों में ग्रह हैं, इनका भी, इनकी कंट्रोलर एक देवी पृथ्वी देवी है। वो पृथ्वी मिट्टी नहीं है, वो एक देवी है, नर आकार की है। ऐसे ही सूर्य देव है। ये सूर्य जो आग का गोला, ये देव नहीं है, वो सूर्य एक देवता है, नर आकार है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकाश स्रोत आते हैं। ऐसे एक बहुत घने सूर्य हैं, चंद्रमा है, प्रकाश स्रोत हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो भूल से इस सूर्य को देवता मानकर हम इसी पर अपना केंद्र कर लेते हैं ध्यान कि ये भगवान है, देवता है। और इन सभी देवों के 3 मुख्य देव हैं। वो एक श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी और तीसरे श्री शिव शंकर जी। ये 3 लोकों में एक विभागीय मंत्री है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। भगवान विष्णु जी जो हैं, ये 3 लोकों के अंदर सतोगुण विभाग के मंत्री हैं। और भगवान शंकर तमोगुण विभाग के साहब हैं, राम हैं, मालिक हैं, देव हैं, स्वामी हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, 88,000 खेड़े अलग से बने हुए हैं, शपथपुरी हैं, ब्रह्मलोक, ऊपर एक गुप्त लोक है, ब्रह्मलोक के ऊपर एक और लोक है। तो ये लोक एक ब्रह्मांड के अंदर, यह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, तल, अतल, वितल, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक, इंद्र का लोक, धर्मराज का, न्यायाधीश का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, दुर्गा जी का लोक, ये कुल मिलाकर गोलोक आदि ये 14 लोक होते हैं।
सूर्य है, चंद्रमा है, तो एक ब्रह्मांड के अंदर ये इतनी ही सामग्री होती है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं, उसका स्वामी है ब्रह्म सरपुरुष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की तो स्थिति से अपरिचित हो गए हो, अन्य देवों की स्थिति से भी परिचित हो गए हो कि ये कितने साहब हैं, कितने स्वामी हैं, कितने मालिक हैं। और इनका पिता जो है ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं ये इसी की संतान है। देवता इसी से उत्पन्न हुए, आगे इन देवों से देव हुए, उन आगे संतान हुई, ऐसे। तो एक ब्रह्मांड की मैं आपको व्यवस्था बता दी, और 21 ब्रह्मांड हैं इस सरपुरुष के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और 17 में है तीसरा अन्य है जो इनसे अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। सरपुरुष कहो या सरब्रह्म कहो, और इसको सीधा ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म की परिभाषा आपको बताएं, ब्रह्म क्यों कहते हैं इसको। लेकिन ब्रह्म का अर्थ तो साब ही होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। लेकिन अब जैसे किसी भी विभाग में आप देख लीजिए या कोई भी व्यवस्था देखें, जैसे बकरे पालता है कसाई, उनका साहब है, मालिक है, लेकिन वो किस टाइप का साहब है तो उनका मालिक स्वामी है, वो उसका अंतर्गत है, उनका जो चाहे सो वो कर सकता है। लेकिन वो साहब होते हुए भी उसका नेचर कैसा है, उसकी ड्यूटी कैसी है, उसका कर्तव्य क्या है, ये प्रत्येक साहब के कर्तव्य में अंतर है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सत श्री जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਚੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਾਤਾ ਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 4-5 ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਘਰ ਵੇਚ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜੀ। ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੰਤਰ ਨਕਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ 5 ਮੰਤਰ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਓਂਕਾਰ ਏਂਕਾਰ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਮੰਤਰ ਉਹ 5 ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਤਬਾਦਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੇਤਬਾਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ,
ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਤਬਾਦਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ 2 ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਬਾਦਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਰਾਏ ਕਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 3 ਤਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਾਪ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਤਾਪ ਇਹ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਰਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਗਤ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤਬਾਦਾ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆਪ ਹੀ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਹ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਨਕੋਦਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਲੋਹੀਆਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਛੱਡ ਤੇ ਜੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਨਿਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੇ ਗਏ ਜੀ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਮੇਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਦੋ ਚਾਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੌਂ ਗਿਆ? ਭਗਤ ਮਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਟਰੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਬੀ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਕੂਟਰੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਜੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ, ਚੇਲਿਆਂ ਕੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਣੀ 1.5 ਬੋਤਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, 40 ਸਿਗਰਟਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਜੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਭ ਹੌਲੀ ਸਭ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 4-5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ 2-4 ਸਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।